today we are going to start the second chapter of history, historiography, Indian tradition. Historiography, Indian tradition. And in this part of the chapter, we are going to learn such a type of points there. The first point is there, tradition for Indian historiography. And then the second point is there, Indian historiography, various ideological frameworks. Then the first point is there, tradition of Indian historiography. In the last lecture, I had told you, that means in the previous chapter, I had told you about the historiography. What is mean by historiography? Can you tell me what is mean by historiography? Historiography, critical. Okay, critical narration of the past event. It is called the historiography. Then historiography, that means the writing history, written history we call it. Okay, written history about the Indian tradition. Today we are going to learn about the written history about Indian tradition. Indian tradition. Okay, the first point is there, tradition of Indian historiography. Tradition of Indian historiography. Then now listen carefully. We learnt about the Western tradition of historiography in the last lesson. In this lesson, we will know about the tradition of Indian historiography. तो लास्ट लेसन में हमने क्या पढ़ा? वेस्टर्न हिस्टोरियोग्राफी यानी वेस्टर्न ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी. अब इस लेक्चर में या इस लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि इंडियन हिस्टोरियोग्राफी के बारे में. इंडियन हिस्टोरियोग्राफी के बारे में, ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी. देन लिसन केयरफुली, हिस्टोरियोग्राफी इन द एंशिएंट पीरियड. Historiography in the ancient period. The ancient period in India, memories of the great deeds of ancestors and mythological lore. Also, memories of social traditions were preserved with the help of oral recitals. Okay, then जो हमारे एंशियंट हिस्ट्री है या एंशियंट पीरियड इन इंडिया, एंशियंट मेमोरी जो है हमारी इंडिया की, जो एंशियंट मेमोरीज है, जो ग्रेट डीड्स हमारे एंसिस्टर्स ने वहाँ पे किए, मतलब ओल्ड पीपल ने वहाँ पे किए, जिसमें माइथोलॉजिकल लोर भी है वहाँ पे. माइथोलॉजिकल नॉलेज, लॉर, LORE, लॉर मीन्स नॉलेज या विद्या जिसे हम कह सकते हैं. तो माइथोलॉजिकल नॉलेज, लोर. उसके बाद अल्सो मेमोरीज ऑफ सोशल ट्रेडिशंस, जो सोशल ट्रेडिशन से उनकी मेमोरीज वेर प्रिजर्व विद द हेल्प of oral recitals. Recital means that recitals means whatever the sources of history, we learn about the sources of history there, no? Oral sources are there, or the written sources and material sources. All these things are recital here. Okay, then the inscription on the Harappan seals and other artifact confirm that Indians had mastered the art of writing as early as the 3rd millennium BCE. तो अभी कुछ इंस्क्रिप्शन हमें वहां पे दिखे. व्हाट इज मीन बाय इंस्क्रिप्शन? इंस्क्रिप्शन मीन्स प्रिंट. इंस्क्रिप्शन मीन्स प्रिंट. ओके, द इंस्क्रिप्शंस ऑन द हरप्पन सील्स, हरप्पन सील्स के ऊपर कुछ प्रिंट्स हमें मिले. एंड अदर आर्टफैक्ट्स, तो कुछ अदर आर्टफैक्ट्स भी वहां पे मिले. हरप्पन सील्स आपको पता है, हरप्पा एंड मोहनजोदाड़ो, द ब्यूरिड cultures we can found in the north part of the इंडिया के नॉर्थ पार्ट में ये हरप्पा एंड मोहनजोदाड़ो वहाँ पे मिले. उसमें जो सील्स वहाँ पे मिले है ना, तो उसमें कुछ प्रिंटेड मटेरियल था. एंड अदर आर्टफैक्ट, यहाँ पे देखो आपको inscriptions on the Harappan seals and other artifact confirm that Indians had mastered the art of writing. तो इंडियन पीपल जो थे वो राइटिंग की आर्ट में वहां पे मास्टर्ड थे. ये चीजें कौन बताता है? तो हरप्पन सील्स और ये कुछ अदर आर्ट फैक्ट जो है वो कंफर्म करते हैं कि इंडियन पीपल राइटिंग स्किल में मास्टर्ड थे. एज अर्ली एज द 3rd मिलेनियम BCE, 3rd मिलेनियम BCE में भी, मतलब ये मटेरियल वहां पे जो मिला वो 3rd मिलेनियम BCE का था. 3rd मिलेनियम BCE का था. और उस वक्त से प्रिंटिंग या उस वक्त से राइटिंग स्किल इंडियन वहां पे जानते थे. ये हमें समझ में आता है. व्हाट इज मीन बाय BCE? बिफोर क्राइस्ट एरा. ओके, देन और परहैप्स बिफोर दैट, और कहा जाता है कि उससे भी पहले, मतलब 3rd मिलेनियम BCE के पहले भी
हमारे इंडियन पीपल जो थे वो राइटिंग के बारे में जानते थे। However, the Harappan script is not yet successfully disappeared. ओके, तो जैसे कि हरप्पन स्क्रिप्ट जो है वो सक्सेसफुली वहाँ पे डिसफियर नहीं हुई, मतलब कन्वर्ट इनटू अ नॉर्मल लैंग्वेज। व्हाट इज मीन बाय डिसफियर्ड? दैट मीन्स कन्वर्ट इनटू नॉर्मल लैंग्वेज, कन्वर्ट इनटू नॉर्मल लैंग्वेज, डिसफियर्ड। तो ये जो हरप्पन जो भी सारी स्क्रिप्ट है वो अच्छी तरह से हम कन्वर्ट नहीं किए, नॉर्मल लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट नहीं कर पाए सक्सेसफुली, लेकिन फिर भी राइटिंग जानते थे, ये हम कह सकते हैं। देन द अर्लीस्ट नोन रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल नेचर फाउंड इन इंडिया आर इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शन। तो हाल ही में मिले हुए जो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स थे, उसमें भी कुछ इंस्क्रिप्शन प्रिंटिंग हमें देखने को मिलती है जो इंडियन थे। दे आर डेटेड टू द 3rd सेंचुरी, और उनकी डेट वहां पे बताई जाती है 3rd सेंचुरी बीसीई की, 3rd सेंचुरी बीसीई में। दैट इज एम्परर अशोक मौर्य टाइम। ये कौन सा टाइम हुआ? तो एम्परर अशोक मौर्य जो थे उनके टाइम की ये राइटिंग, उनके टाइम की ये प्रिंटिंग वहां पे मिली है। His edicts are inscribed on natural rocks and stone pillars। तो उनकी जो edicts थी, that means जिसे हम कहेंगे suggestions, edicts, his edicts are inscribed means print, okay। तो उनकी जो भी सारी suggestions थी वो प्रिंट हुई कहाँ पे? नेचुरल रॉक्स के ऊपर एंड स्टोन पिलर्स, नेचुरल रॉक्स और स्टोन पिलर्स के ऊपर ये कुछ उनकी जो सजेशंस थी वो प्रिंटेड थी कहाँ पे? रॉक पे और स्टोन पे। फ्रॉम द 1st सेंचुरी सीई inscriptions begin to occur on coins, metal images and sculptures and also on copper plates। तो 1st सेंचुरी सीई में ये इंस्क्रिप्शंस स्टार्ट हुए, इंस्क्रिप्शंस वहाँ पे स्टार्ट हुए, मतलब प्रिंटिंग वहाँ पे स्टार्ट हुई। किसके ऊपर की जाती थी? कॉइन्स के ऊपर। मेटल इमेजेस थे, मेटल इमेजेस वहाँ पे मिले एंड स्कल्पचर्स, कुछ स्कल्पचर्स के ऊपर, लिंगों के ऊपर, वॉल के ऊपर ये प्रिंटिंग वहाँ पे मिली। एंड ऑल्सो कॉपर प्लेट, कुछ कॉपर प्लेट के ऊपर भी ये मिले। अब हम यहाँ पे एक कॉपर प्लेट देख सकते हैं जिसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रिंटिंग वहाँ पे की गई है ना? तो ये है वो, ओके। देन द नेक्स्ट थिंग इज देयर, from the first CE provided metal images plates, they provide important historical information। तो ये सारी मतलब मेटल प्लेट्स या कॉइन्स, मेटल के ऊपर जो स्कल्पचर के ऊपर जो प्रिंटिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। वी गेट टू नो अबाउट द डेट्स ऑफ वेरियस किंग्स, तो जिसकी वजह से हमें अलग अलग किंग्स के डेट्स वहां पे मिलते हैं, है ना? मतलब कौन से टाइम में कौन सा किंग था। देन डायनेस्टिक जीनियोलॉजीज, डायनेस्टिक जीनियोलॉजीज, व्हाट इज मीन बाय डायनेस्टिक जीनियोलॉजीज? जीनियोलॉजीज मीन्स ब्लड लाइन, जिसे वंशावळ हम कहते हैं, है ना? दैट मीन्स आवर फादर, देन ग्रैंडफादर, ग्रैंड ग्रैंडफादर, देन ग्रैंड ग्रैंड ग्रैंडफादर, है ना? वो ब्लड लाइन जीनियोलॉजीज, डायनेस्टिक जीनियोलॉजीज की भी जानकारी हमें इन प्रिंटिंग से मिलती है। देन टेरिटोरियल एक्सटेंट, जो भी टेरिटोरियल एक्सटेंट है, रीजनल एक्सटेंट जिसे हम कह सकते हैं, रीजनल एक्सटेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेरियस एम्पायर्स, तो अलग अलग तरह के जो एम्पायर्स थे, है ना, किंग थे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी मिलती है। एंड किंगडम एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स, कुछ किंगडम्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में इन इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है, प्रिंटिंग से हमें पता चलता है। देन सोशल ऑर्गेनाइजेशन, देन क्लाइमेट, फेमिन्स एक्सेट्रा ऑफ द रिस्पेक्टिव टाइम, और उस टाइम के ये सारे इवेंट्स, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स, उसके बाद सोशल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हुई उस टाइम में, क्लाइमेट कैसा था, देन फेमिन्स वगैरह वहाँ पे किस तरह के आए, है ना, वो हमें उनका टाइम हमें पता चलता है। द एंशिएंट इंडियन लिटरेचर इंक्लूडिंग द इपिक रामायण एंड महाभारत, पुराणाज, जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट, historical accounts by Indian author and also travelogue by foreign travelers, ओके। तो एंशिएंट इंडियन लिटरेचर के अंदर
हमारे दो बड़े इपिक वहां पे जो है, महाकाव्य इपिक है ना, द ग्रेट पोएम्स, जिसे हम कह सकते हैं रामायण एंड महाभारत, ये भी लिटरेचर, इंडियन एंशियंट इंडियन लिटरेचर हम कह सकते हैं। देन कुछ पुराणाज हैं, जैसे गरुड़ पुराण है ना, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ऐसे बहुत से सारे पुराणाज हैं। देन जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट, तो जैन रिलीजन है, बुद्धिस्ट रिलीजन है, और उनके भी कुछ लिटरेचर है, वो भी देखने को मिलते हैं। हिस्टोरिकल अकाउंट्स बाय इंडियन ऑथर्स, तो इंडियंस ऑथर ने जो भी सारे हिस्टोरिकल अकाउंट्स वहां पे बनाए। एंड ऑल्सो ट्रेवलॉग बाय फॉरेन ट्रेवलर्स, जो फॉरेन ट्रेवलर्स थे उनके जो ट्रेवलॉग्स थे, मीन्स द राइटिंग पेज ऑन द जर्नी के ऊपर जो वहां पे लिखा गया, वो ट्रेवलॉग्स वहां पे देखने को मिलते हैं। नाउ द नेक्स्ट पेज इज देयर आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री, तो ये सारी चीजें जो है वो हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। ओके, राइटिंग ऑफ बायोग्राफीज ऑफ किंग्स एंड डायनेस्टिक हिस्ट्रीज मार्क एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन इंडियन हिस्टोरियोग्राफी, तो इंडियन हिस्टोरियोग्राफी के अंदर जो भी सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं उन्हें मार्क करने के लिए जो भी बायोग्राफीज हैं, किंग की बायोग्राफीज एंड डायनेस्टिक हिस्ट्री मतलब ब्लड लाइन हिस्ट्री, जिसे मैंने आपको कहा अभी समझाया था डायनेस्टी क्या होती है, डायनेस्टी दैट मीन्स वंश है ना। तो ये सारी चीजें हमें जो एंशियंट राइटिंग है, लिटरेचर है, उससे मिलता है। इन द इंडियन हिस्टोरियोग्राफी देन हर्षचरित written in 7th century CE by बनाभट्ट is King हर्षाज बायोग्राफी, तो एक राजा था, किंग था, जिसका नाम है हर्ष राजा। ओके, तो उनकी बायोग्राफी वहां पे लिखी गई। किसने लिखी? बानाभट्ट जो थे राइटर, बानाभट्ट, इन्होंने इस किंग की, हर्ष नाम के जो किंग है उनकी बायोग्राफी वहां पे लिखी, जो 7th सेंचुरी में लिखी थी, और उस बायोग्राफी को नाम दिया गया हर्षचरित। ओके, इट पोर्ट्रेट अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ ड्यूरिंग द किंग्स टाइम, तो जो भी किंग्स थे उनके टाइम में किस तरह के मतलब रियलिस्टिक पिक्चर बताए जाते हैं, किस तरह की सोशल सिस्टम थी, किस तरह की इकोनॉमी वहां पे थी, देन पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह की, रिलीजियस सिस्टम किस तरह की थी, कल्चर कैसा था, ये सारी जानकारी इस राइटिंग से हमें, कुछ बायोग्राफी से, इस तरह की राइटिंग से हमें मिलती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज देयर हिस्टोरियोग्राफी इन द मेडिवल पीरियड, हिस्टोरियोग्राफी इन द मेडिवल पीरियड, द स्टाइल ऑफ राइटिंग रजत रंगिनी, द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बाय कोलना इन द 12th सेंचुरी सीई, 12th सेंचुरी सीई में एक नई वाली राइटिंग हमें देखने को मिलती है, नई स्टाइल की राइटिंग वहां पे देखने को मिलती है, जिसमें रजत रंगिनी ये है द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की हिस्ट्री वहां पे बताई गई, और वो लिखे कोल्हाना, इन्होंने कोल्हाना नाम के जो राइटर थे या हिस्टोरियन जिसे हम कह सकते हैं, उन्होंने ये लिखा है। वो कब लिखा? 12th सेंचुरी सीई में। इज क्वाइट क्लोज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के बिल्कुल पास वाली चीज ये बताई जाती है। कोलाना हिमसेल्फ सेज that he wrote his text after critically examining various sources like inscriptions, coins, remains of ancient monuments, dynastic records and local tradition। तो ये जो कोलाना है वो क्या कहते हैं कि उन्होंने जो भी सारी हिस्ट्री लिखी, जो भी सारे स्टोरीज उन्होंने लिखी है, या उनका जो भी सारा लिटरेचर है, वो उन्होंने कैसे लिखा कि उन्होंने क्रिटिकली एग्जामाइन किया है। कौन सी चीज़ों को क्रिटिकली एग्जामाइन उन्होंने किया? तो बहुत से सारे इंस्क्रिप्शंस, अभी मैंने आपको बताया इंस्क्रिप्शंस क्या है, तो बहुत से सारे इंस्क्रिप्शन को उन्होंने क्रिटिकली एग्जामाइन किया। कॉइन्स, रिमेन ऑफ एंशिएंट मोन्यूमेंट्स, जो भी एंशिएंट मोन्यूमेंट्स हैं मतलब स्मृतियाँ जिसे हम कहते हैं, तो वो, उसके बाद डायनेस्टिक रिकॉर्ड्स, जो भी डायनेस्टिक रिकॉर्ड्स है वो, और लॉजिकल ट्रेडिशन, इन सब चीज़ों को क्रिटिकली एग्जामाइन करने के बाद कोलाना इन्होंने अपनी हिस्ट्री या हिस्ट्री की राइटिंग उन्होंने
की है, तो वो रिलायबल है, ऐसा वहाँ पे कहा जाता है। इन द medieval Indian in the medieval India, the historians in the courts of Muslim rulers were influenced by Arabic and Persian historiography। तो मेडिवल पीरियड में जो भी सारे इंडियंस थे, है ना, तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस, एक बहुत बड़ा प्रभाव किनका गिरा? उस वक्त के जो मुस्लिम रूलर्स थे, जैसे कि अरेबिक एंड पर्सियन जो हिस्टोरियोग्राफी है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस इंडियन हिस्टोरियंस के ऊपर, मिडिवल इंडियन हिस्टोरियंस के ऊपर वहाँ पे देखने को मिलता है। अमंग देम जियाउद्दीन बरानी holds an important place in Tariq-e-Firuz Shahi, a book written by him। तो यहाँ पे एक राइटर और बताए जाते हैं या हिस्टोरियन जिसे हम कह सकते हैं कि जियाउद्दीन बुरानी, इन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा रोल राइटिंग में वहाँ पे किया है, तो जिसमें तारिक ई फिरोज शाही ये बुक लिखी गई, उन्होंने लिखी। ही हैज स्टेटेड द पर्पज ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, उन्होंने हिस्टोरियोग्राफी का पर्पज वहाँ पे बताया है तारिक ई फिरोज शाही में। तारिक ई फिरोज शाही में हिस्टोरियोग्राफी का पर्पज मतलब रिटर्न हिस्ट्री का जो पर्पज है वो बताया है। According to him, the historian's duty is not limited only to the recording of the ruler's valor and policies of welfare, but he should also write about the ruler's failing and incorrect policies। तो इस राइटिंग में, हिस्टोरियोग्राफी में, यही चीजें लिमिटेड नहीं होनी चाहिए कि किस तरह के रूलर्स थे, उनके किस तरह के करेज वहां पे थे, उनकी पॉलिसीज किस तरह की थी, उन्होंने कौन सी अच्छी चीजें की, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें वही लिखना जरूरी नहीं होता। तो उसके अलावा क्या क्या लिखना जरूरी होता है कि जो इनकरेक्ट पॉलिसीज हैं, रूलिंग किस तरह से गलत थी, ये भी लिखना जरूरी है ना, मतलब ट्रू एंड फॉल्स, बैड एंड गुड्स, ये भी चीजें लिखना वहां पे जरूरी होता है। देन Barani further says that historians should also take into consideration the impact of teaching of the wise, the learned and saints on the culture of life of people। तो ये जो बरानी है, राइटर है या हिस्टोरियन है, वो आगे क्या कहते हैं कि जो हिस्टोरियंस है उन्होंने क्या करना चाहिए, उन्होंने कौन सी चीज को कंसीडर करना चाहिए। तो उन्होंने टीचिंग ऑफ द वाइज, जो भी सारे मतलब स्किलफुलनेस या इंटेलेक्चुअल चीजों से जुड़ी हुई, है ना, बुद्धिमत्ता से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, जो भी इंटेलेक्चुअल से सीखी हुई, टीचिंग की हुई जो चीजें हैं, वो उन्होंने यूज करनी चाहिए अपनी राइटिंग में। उसके बाद जो उन्होंने सीखा है, द लर्न एंड द साइंस ऑन द कल्चर ऑफ लाइफ। ओके, तो हर एक मतलब सोसाइटी के अंदर या इंडियन पीपल के कल्चर में वहाँ पे जो भी सारे संत से, उन्होंने बहुत सी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे बताई, वो सारी अच्छी चीज़ों को फॉलो करना भी ज़रूरी है जब हिस्ट्री की राइटिंग वहाँ पे की जाती है, हिस्ट्री की राइटिंग की जाती है। ओके, देन द नेक्स्ट थिंग इज देयर फॉर द हिस्टोरियंस इन द मुगल कोर्ट्स प्रेजिंग द एम्परर्स एंड इनहिबिशन ऑफ लॉयल्टी बिकम मोर इम्पोर्टेंट। तो जो मुगल पीरियड के या मुगल कोर्ट के अंदर जो भी सारे हिस्टोरियंस थे, वो उस टाइम के जो एम्परर्स थे, है ना, उस टाइम के जो एम्परर्स थे उनकी लॉयल्टी का एग्जीबिशंस वहाँ पे देते हैं, है ना, मतलब वो किस तरह से अच्छे थे, एम्परर किस तरह से अच्छे थे, उसका प्रदर्शन सिर्फ राइटिंग में किया जाता है। और यही सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट देकर लिखा गया। The customs of adding suitable poetic quotes and beautiful pictures was also introduced। तो जिसमें द कस्टम ऑफ एडिंग सुटेबल पोएटिक कोड्स, जो भी पोएटिक कोड्स हैं वो वहाँ पे ऐड किए गए। देन ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑफ आल्सो इंक्लूडेड, कुछ अच्छे अच्छे जो पिक्चर्स हैं, मतलब जो एम्परर्स हैं, जो किंग्स थे उस वक्त के, उनके जो अच्छे अच्छे पिक्चर्स हैं कि वो अच्छी कौन सी चीज़ें करती थे, तो उनके पिक्चर्स भी वहाँ पे इंक्लूड किए गए। देन बाबर द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, बाबर द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर रोट एन ऑटोबायोग्राफी। तो बाबर ने ऑटोबायोग्राफी वहाँ पे लिखी, जो मुगल एम्पायर के फाउंडर थे, मुगल एम्पायर के फाउंडर बाबर। ओके,
ये यहाँ से स्टार्ट होगा आपका क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट वाला आंसर, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट वाला आंसर जो आपके एक्सरसाइज में है। बाबर द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर रोट एन ऑटोबायोग्राफी एंटाइटल्ड तुजुक ई बाबरी। तो तुजुक ई बाबरी नाम की ऑटोबायोग्राफी लिखी, किसने लिखी? बाबर ने लिखी, जो मुगल एम्पायर के फाउंडर थे। It contain the descriptions. It contain the descriptions of battles fought by him. तो उन्होंने जो भी सारे मतलब बैटल युद्ध वहाँ पे लड़े थे उनका डिस्क्रिप्शन वहाँ पे बताया है। बाबर also recorded his minute observations of various regions. तो अलग अलग रीजन की जो भी माइन्यूट छोटे छोटे ऐसे ऑब्जर्वेशन उन्होंने किए थे उसके बारे में भी लिखा है। अदर रिलीजन के बारे में लिखा। एंड सिटीज ट्रेवल बाय हिम, और जो भी सारी सिटीज में वो गए उन्होंने ट्रेवलिंग की उसके बारे में भी इस तुजुक ई बाबरी में उन्होंने लिखा है, मतलब उनकी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। बाय हिम इंक्लूडिंग द लोकल इकोनॉमी, कस्टम्स एंड फ्लोरा। तो लोकल इकोनॉमी, कस्टम और फ्लोरा के बारे में उन्होंने अपने बायोग्राफी में लिखा है। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट इन योर एक्सरसाइज। इस मतलब चैप्टर के बाद जो भी एक्सरसाइज वहाँ पे है तो उसमें ये है, उसका आंसर ये है अबुल फजल्स अकबरनामा। ओके, बिफोर दैट वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज इन द बॉक्स, डू यू नो, on the second page or page number 8 we are seeing here. Do you know? Al-Burani wrote in Arabic about Indian knowledge and social life. तो अल-बुरूनी ये जो थे उन्होंने, ये एक अरेबिक राइटर थे, उन्होंने इंडियन नॉलेज एंड सोशल लाइफ के बारे में लिखा है। इन द फॉलोइंग पीरियड मेनी बुक्स अबाउट इंडिया वेयर रिटन बाय फॉरेन स्कॉलर्स। तो फॉरेन स्कॉलर्स ने इंडिया के ऊपर बहुत से सारे बुक्स वहाँ पे लिखे। अमंग देम टू नेम ऑफ फ्यू आर्स, तो उसमें से कुछ नाम हम यहाँ पे दिए हैं वो पढ़ते हैं। हसन निज़ामीज, देन तुजुक मा असीर, देन मन्हाज ई सिराज, देन तबकत ई नासिरी, वेरियस वर्क बाय अमीर खुसराव, तुजुक ई तिमुरी, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ तिमूर, that means I. Lang, who was also known as Amir Timur, who invaded India, जिन्होंने इंडिया को इन्वेडेड किया था, मतलब घेर लिया था, इंडिया के ऊपर अटैक किया था, इंडिया को कैप्चर किया था, उन्होंने ये बुक लिखी है तिजुक ई तिमूर। ओके, अपने ऑटोबायोग्राफी में इंडिया के बारे में उन्होंने लिखा है। देन बिन अहमद, नेक्स्ट है वहाँ पे तारिक ई मुबारक शाही, तारिक ई मुबारक शाही बाय याह्या बिन अहमद सिरिंदी। तो याह्या बिन अहमद सिरिंदी उन्होंने लिखा तारिक ई मुबारक शाही। देयर काउंट्स प्रोवाइड अस विथ हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन ऑफ सुल्तान्स पीरियड, जो भी सारे सुल्तान्स के पीरियड थे उनकी हिस्ट्री के बारे में जानकारी हमें ये सारी बायोग्राफीज में, ये सारी बुक्स में से मिलती है। अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स इन इंडिया आर आल्सो इम्पोर्टेंट। तो मतलब इंडिया के अंदर जो फॉरेन ट्रैवलर्स वहाँ पे आए और उन्होंने इंडिया के बारे में जो भी लिखा वो भी बहुत महत्वपूर्ण वहाँ पे है। अमंग देम आर इब्न बतूता, उनमें से एक है इब्न बतूता, दूसरे अब्दुल रज्जाक, देन मार्को पोलो, ये है निकोलो कॉन्टी, देन बारबोसा एंड डोमिंगोज पेस, ये सारे वहाँ पे राइटर थे। उन्होंने इंडिया के अंदर ट्रैवलिंग जो की और जो भी कुछ उन्होंने लिखा तो वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने अपनी हिस्ट्री में, अपनी राइटिंग में की है। देयर काउंट्स प्रोवाइड अस द हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन ऑफ मेडिवल इंडिया। तो ये सारी चीज़ें हमें इंडिया के मेडिवल हिस्ट्री के बारे में जानकारी देती हैं। ईश्वर दास नागर, देन भीमसेन सक्सेना, खाफी खान एंड निकोलाओ मनौसी वेयर अमंग द हिस्टोरियंस ऑफ औरंगजेब्स टाइम्स। तो औरंगजेब के टाइम में ये सारे हिस्टोरियंस वहाँ पे थे। हुज काउंट्स आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ मुगल हिस्ट्री।
तो मुग़ल हिस्ट्री में मुग़ल हिस्ट्री की जो इन्फॉर्मेशन है या मुग़ल हिस्ट्री के बारे में जब अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो इसमें से हमें बहुत सी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल सकती है। ओके, द नेक्स्ट पार्ट वी विल लर्न इन द नेक्स्ट लेक्चर।